जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी चन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी चन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this evening we're reading from the Bhagavad Gita. This is chapter 3, text number 43. हरे कृष्णा। आज रात्रि को हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। Evam buddhe param buddhva एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा samstab atmanam atmana संस्मरणात्मनो jatu shatram mahabaho kamarupam durasadam. Evam buddhe param buddhva samstabatmanam atmana jahi satram mahabaho kamarupam durasadam. Evam buddhe param buddhva samstabatmanam atmana jahi shatram mahabaho kamarupam durasadam. जय शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। Evam, thus, इस प्रकार buddhe to intelligence, बुद्धि से param superior, श्रेष्ठ, buddhva knowing, जानकर, samstabhya by steadying, स्थिर करके, atmanam the mind, मन को, atmana by deliberate intelligence, सुविचारित बुद्धि द्वारा, jahi conquer, जीते, shatram the enemy, शत्रु को, mahabaho almighty armed one, हे महाबाहु, kamarupam in the form of lust, काम के रूप में, durasadam formidable. दुर्जेय। Translation. Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses,
mind, and intelligence. O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. अनुवाद इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. This third chapter of the Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering impersonal voidness, the ultimate end. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature. Desire for overlording and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind and the intelligence. One may not give up work and prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material senses and the mind. By steady intelligence directed towards one's pure identity. This is the sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by the so-called practice of yoga postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nitamscha
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावन ईश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य कि आज हमारे गीता अमृत कार्यक्रम के लिए परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज उपस्थित है। महाराज जी का संक्षिप्त में परिचय। महाराज जी इंग्लैंड से है और जब वे अपने महाविद्यालय की शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त कर रहे थे तभी इस्कॉन के संपर्क में आए। महाराज जी ने 1970 के दशक में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जब वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके मन में ऐसे प्रश्न थे कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आत्मा का अस्तित्व होता है या नहीं। और इसीलिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय अपना एक वैकल्पिक विषय ह्यूमैनिटी लिया जिसमें कि भगवत गीता का विषय लिया। और उनका दुर्भाग्य था कि भगवत गीता का विषय जो प्रोफेसर पढ़ाते थे वो नास्तिक थे। और उसी समय हम जानते कि 1970 के दशक में इंग्लैंड में जॉर्ज हैरिसन के द्वारा हरे कृष्ण आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ था और जॉर्ज हैरिसन के कीर्तन को ही उन्होंने टेलीविज़न पर देखा और उसके द्वारा विज्ञापन देखा कि भक्ति वेदांत मैनर में हरे कृष्ण का केंद्र है जहाँ पर कि भगवत गीता की कक्षाएं होती है। और क्योंकि उनकी रुचि थी भगवत गीता पढ़ने की तो फिर वे वहाँ पर मंदिर में गए और जब भक्त भगवत गीता पढ़ा रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लगा और साथ में ही उन्होंने संध्या का कीर्तन भी अटेंड किया और उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस तरह से नियमित रूप से वो उस मंदिर में उस सेंटर में जाने लगे। उसके पश्चात महाराज श्री पढ़ाई करने के पश्चात जॉब प्रारंभ किया तो हमारा भक्ति वेदांत मैनर साउथ इंग्लैंड में है और उनका जॉब जो नॉर्थ इंग्लैंड में था, परंतु फिर भी महाराज श्री प्रतिदिन उस केंद्र में जाते थे, भगवत गीता की कक्षा अटेंड करते थे और कीर्तन अटेंड करते थे। फिर कुछ समय के पश्चात मंदिर के भक्तों ने देखा कि बहुत महाराज गंभीर रहते, उनसे कहा कि अब आप मंदिर में ही रुक सकते हो और यहीं से जॉब कर सकते। तो इस तरह से फिर वो केंद्र में ही रहने लगे और फिर जब फिलॉसफी शिला प्रभुपाद जी के सिद्धांत को वो समझे तो उनकी इच्छा हुई कि अब मुझे पूर्ण रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए और इस तरह से उन्होंने वहाँ के केंद्र को ज्वाइन किया। और तभी शिला प्रभुपाद जी 1971 में वहाँ पर आए और प्रभुपाद जी के द्वारा महाराज जी की दीक्षा हुई और उसके पश्चात कई वहाँ की सेवाएं वहाँ पर अर्पण की उन्होंने, जैसे कि फंड कलेक्शन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और विशेष रूप से उस समय मंदिर के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती थी तो महाराज श्री को अगरबत्ती का जो व्यापार है उसके लिए नियुक्त किया गया और ऐसे उनकी वहाँ पर सेवा प्रारंभ हुई। दूसरे ही वर्ष उनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई। उसके पश्चात फिर यहाँ पर भारत में प्रचार प्रसार चल रहा था लेकिन कोई भी भारतीय भक्त नहीं बन रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि यहाँ पर भी अच्छे से मंदिर का संयोजन हो और संचालन हो और इसीलिए फिर प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की जो विदेश के उन्होंने आग्रह किया कि जो विदेश के भक्त है भारत में आए और प्रचार प्रसार किए। तो उस समय में जो ब्रिटिशर थे उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी, वो कितने समय भी यहाँ भारत में रह सकते हैं। तो इसीलिए फिर भक्ति वेदांत मैनर के कुछ भक्तों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और उसमें महाराज श्री फिर भारत आए और भारत के कई भागों में महाराज श्री ने लाइफ मेंबर के लिए प्रचार किया और साथ ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया और इस तरह से महाराज श्री भारत में प्रचार करने लगे। 1994 में महाराज श्री की संन्यास दीक्षा हुई और आज वर्तमान में महाराज श्री इस्कॉन में इनिशिएटिंग गुरु है और
एशिया के विभिन्न देशों में महाराज श्री प्रचार करते, जैसे भारत, चाइना, इंडोनेशिया, साथ ही सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया, ऐसे देशों में प्रचार प्रसार करें। महाराज श्री विशेष रूप से इस्कॉन में उनके गहन अध्ययन, उनकी कड़क साधना और उनके सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। उनके शास्त्रों में गहन अध्ययन के कारण जो मायापुर इंस्टीट्यूट मायापुर में अनेक कोर्सेस लेता है, जो कि देश विदेश के भक्तों के लिए भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और अनेक वैष्णव कोर्स लेता है, उनके महाराज श्री फैकल्टी मेंबर है जब से मायापुर इंस्टीट्यूट है। उसी तरह से कड़क साधना, जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से महाराज श्री नासिक में है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक महाराज जी का मॉर्निंग प्रोग्राम मंदिर में होता है, इस आयु में भी। तो इस तरह से उनकी कड़क साधना और सारे भक्तों को वो इंस्पायर कर रहे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य कि महाराज श्री आज हमारे मध्य गीतामृत के लिए है। आइए तो हम महाराज श्री का स्वागत और धन्यवाद देना चाहेंगे 3 बार जोर से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परम पूज्य भक्ति विघ्नाशक नरसिंहदेव महाराज की, शिला प्रभुपाद की। जिन भक्तों के पास मोबाइल फोन है उनसे विनती है कि कृपया आप उसे साइलेंट मोड या स्विच ऑफ कर दें। जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे, कृपया उन पर ध्यान दें जिससे कि कथा में भाग। हरे कृष्ण। So I'm very glad to have an opportunity to address you this evening. I heard there was a big crowd coming every Wednesday night, so I'm very pleased to see you all here. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बताया गया था कि बुधवार सत्संग कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छे भक्त मात्रा में, संख्या में भक्त आते हैं, तो मैं खुश हूँ आप सब आए आज यहाँ पे। Nasik, of course, is an important place of pilgrimage, and it's important for us to have a very nice temple here and have nice activities. तो नासिक एक तीर्थ क्षेत्र धाम है और इसीलिए बहुत अच्छा मंदिर यहाँ पे हमारा इस्कॉन का हो, ये जरूरत है इस धाम के लिए। So I picked a verse here this evening. I thought it would be interesting for you because many devotees were inquiring from me about how they could be more steady in their performance of devotional service. तो मुझे बहुत भक्त कई बार पूछ रहे थे किस प्रकार से भक्ति योग में हम स्थिर हो सके, तो इसलिए मैंने आज का श्लोक चुना है ताकि उसका उत्तर मैं दे सकूं। Maybe some of you also have that problem, that we're not very regular in chanting and we're not very regular in reading, and you know the different modes of nature influence us. तो ऐसे भी आप सब यहाँ पे बैठे होंगे कि जिनको नियमित जप नहीं हो रहा है, नियमित सत्संग नहीं हो रहा है, अध्ययन नहीं हो रहा है नियमित रूप से, क्योंकि 3 गुण जो है वो हमें प्रभावित करते रहते हैं और हमारा बैंड बजाते रहते हैं। So this is being discussed in this chapter, 3rd chapter, in reply to Arjuna's question. Arjuna wanted to know why we engage in sinful activities, even unwilling, as if by force. क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था पहले भगवद गीता में कि कृष्ण क्यों ऐसा होता है कि हमारी इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी हम पाप कर लेते, गलती कर लेते हैं, तो इसका क्या कारण है? So Lord Krishna immediately identifies the enemy as being lust, and he tells us a lot of information about it. तो श्री कृष्ण जो है वो मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है उसको पहले डिफाइन करते हैं, उसको ढूंढते हैं और फिर बहुत डिटेल में जाके बताते हैं कि ये शत्रु कैसे काम करता है। Just like if there's an enemy, you want to know where they are, you want to hunt them out. तो हम देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में शत्रु है तो हमें हमारी उत्सुकता होती है कि वो शत्रु कहाँ पे है ताकि उनको ढूंढ के हम समाप्त कर सके। So Lord Krishna mentions about the senses, the mind and the intelligence, that they can all be sitting places of this lust. और इसलिए जो सबसे बड़ा शत्रु हमारा काम है, गीता में कृष्ण बताते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियों में ये काम निवास करता है, छुपा रहता है। And he also tells us how there are different degrees of lust. और फिर ये भी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से काम की अलग अलग मात्राएं होती हैं। We're given examples about how the embryo covers the womb, is covered by the womb, and how fire is covered by smoke. तो गीता में कृष्ण उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से एक गर्भ में शिशु गर्भ के द्वारा आवृत्त होता है और किस प्रकार से अग्नि जो है वो धुएं के द्वारा आवृत्त होती है। In the same way, there are different degrees of lust. और उसी प्रकार से अलग अलग मात्रा में काम का हमारे ऊपर आवरण होता है। But what's really important is that we learn how we can also conquer over lust.
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कृष्ण गीता में बताते हैं किस प्रकार से हम काम को जीत सकते हैं। And Lord Krishna speaks here in this verse about how we have to develop spiritual strength. और यह इस अध्याय में खास रूप से और इस श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं किस प्रकार से हमें शक्ति को अर्जित करना है ताकि काम को पार कर सके हम। You know, people like to go to the gym sometimes and they will lift weights. They want to build muscles and in this way make the body physically strong. हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में माताजी प्रभु जी जिम में जाते हैं अपने शरीर को सुडौल, स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए। But we're speaking about spiritual strength. That's a different phenomenon. You want spiritual strength, you have to come to the temple. लेकिन हम यहाँ पे बात करें आध्यात्मिक शक्ति की। आध्यात्मिक शक्ति आंतरिक होती है, अगर वो हमें चाहिए आध्यात्मिक शक्ति शत्रु को जीतने के लिए तो हमें मंदिर में आना ही होगा। Well, of course, you may have your own temple at home. You could also think of the body as a temple. आपके घर में भी मंदिर हो सकता है या इस शरीर को भी हम मंदिर मानते हैं, फिर भी But we have to have that kind of consciousness to appreciate the temple. It's the home of the Lord, the Supreme Lord. He's living there, and we need to develop our relationship with Him. लेकिन हमें वो चेतना होनी चाहिए कि मंदिर जो है भगवान का घर है और भगवान वहाँ पे नित्य रूप से निवास करते हैं और उस मंदिर के साथ आके हम अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। We have relationships just like in the material world. People have friends and parents and lovers and so on. So the same way, the Lord also enjoys different relationships with His devotees. तो इस दुनिया हम देखते हैं कि हम सबके कोई ना कोई संबंध होते हैं, हमारे माता पिता हो, पति पत्नी हो, प्रियकर प्रिय हो, दोस्त हो। उसी प्रकार से भगवान भी चाहते हैं कि हम उनके साथ संबंध प्रस्तावित करें और उस संबंध में श्री कृष्ण को बहुत आनंद आता है। Arjuna is a friend of Lord Krishna, and he not only is he a friend, but he is also a devotee, and that is why Lord Krishna has selected Arjuna to discuss the Bhagavad Gita. हम देखते हैं अर्जुन जो है वो भगवान के भाई भी है और मित्र भी है और इस संबंध में बहुत अच्छे से कृष्ण जुड़े हैं, इसलिए श्री कृष्ण जो है गीता के सारे दिव्य ज्ञान को अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। We want to receive spiritual knowledge. We have to be receptive. We have to be willing to hear. अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए, तो हमें रिसेप्टिव होना चाहिए, हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए उस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए। In the next chapter, Lord Krishna will speak more about the sacrifice of spiritual knowledge. और अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग का वर्णन करते हैं किस प्रकार से ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम प्रगति कर सकते हैं। That to actually receive spiritual knowledge, we have to be humble in the beginning. We have to submit ourselves to the teacher, and we have to inquire from him, and we have to be willing to render service to him. तो श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो अपने आप को विनम्र भाव में श्री गुरु के चरणों में शरणागति लेके सेवा करनी चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। It's not just simply come and touch the feet. ये केवल ऐसा नहीं कि आइए गुरु के चरणों में हाथ लगाइए और निकल जाइए। That is not the process in Krishna consciousness. कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में ये पद्धति नहीं है। Krishna conscious process is based on the same teachings of all the Shastras, where there are questions and answers. कृष्ण भावना की पद्धति है, ये जिज्ञासा की पद्धति है जिसमें प्रश्न भी है और उसके उत्तरों का भी दिया गया है। So Arjuna had questions. He wanted to know from Krishna, why do I do sinful things, even unwilling? तो अर्जुन को यह प्रश्न था कि हे कृष्ण, क्यों ऐसा होता है कि इच्छा नहीं होने के बाद भी जीव जो है, व्यक्ति जो है, पाप कर्म में लग जाता है। And Lord Krishna is making it very clear to Arjuna what is the problem and how he can overcome it. और श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन को बताते हैं कि समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। The general problem in material life is we have the desire to lord over everything. We want to enjoy this world independent of the Supreme Lord. तो इस भौतिक जगत में हम सबकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जो भी वस्तु व्यक्ति को देखते हैं उसका भोग करना चाहते हैं, हम उसका शोषण करना चाहते हैं
और यही सबसे बड़ी समस्या है। We want to satisfy the senses. The body is made up of senses and we want to gratify the senses. और हमारी इच्छा होती है कि शरीर में जो इंद्रिय हमें मिले उस इंद्रियों को तृप्त करें, हम उसमें आनंद लेने का प्रयास करें। But yoga is meant to control the senses, to control the mind. लेकिन योग पद्धति जो है वो मन और इंद्रियों को नियंत्रण रखने की पद्धति है। Srila Prabhupada said just simply doing yoga postures, that's not enough. That's not going to help to solve the real problem. तो केवल योगासना करने से ही हमारे सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ योगासन बहुत लिमिटेड हमें बेनिफिट देता है। We see yoga generally popular around the world today. A lot of people like to do yoga exercises, and in some ways it's beneficial for their health, but there's no spiritual benefit. तो हम देखते हैं आज पूरे विश्व में योग बहुत प्रसिद्ध हुआ है और सब दुनिया में सब प्रकार के लोग योगासन कर रहे हैं ताकि उनको शरीर स्वस्थ रहे। तो उनको हाँ शरीर स्वस्थ हो जाता है, लेकिन उसमें अध्यात्म नहीं है। If we want spiritual benefit, we have to begin by hearing from Lord Krishna, like through the pages of Bhagavad Gita. अगर हमें आध्यात्मिक वस्तु चाहिए, चिद वस्तु अगर हमें चाहिए, तो हमें जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुना, हमें भी भगवद गीता से श्रवण करना आवश्यक है। We have to recognize the problem, that the problem is our uncontrolled mind. तो हमें समस्या को समझना चाहिए और हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारा मन बहुत अनियंत्रित है। Because our mind is contaminated with so many material desires, so we cannot enjoy peace of mind. तो क्योंकि हमारे मन में इतनी सारे वांछाएं, वासना है और वो इतनी बार बार उमड़ती रहती है, इसीलिए हम अपने अंदर शांति का अनुभव नहीं कर सकते। Lord Krishna has described a hierarchy in the body. He says the senses are superior to dull matter. तो भगवद गीता में श्री कृष्ण जो है वो पदोन्नति बताते हैं किस प्रकार से कौन सी चीज श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि शरीर से भी श्रेष्ठ इंद्रिया है। Mind is higher than the senses and intelligence is higher than the mind. तो मन जो है वो इंद्रियों से भी बढ़कर है और मन से भी बढ़कर बुद्धि है। We have to develop that spiritual intelligence that will give you spiritual strength. तो हमें अपने बुद्धि को आध्यात्मिक करना होगा। जब हम अपने बुद्धि को आध्यात्मिक करेंगे तो वो हमें आध्यात्मिक शक्ति देगी। And we get that intelligence by hearing carefully the message of Bhagavad Gita. और वो आध्यात्मिक बुद्धि कृष्णमति हमें जब हम श्रवण करेंगे प्रामाणिक रूप से तो कृष्णमति जागृत हो जाएगी। But not only hearing is only part of the process. We have to apply what is there, what is the knowledge of Bhagavad Gita. We have to put it into practice. तो केवल श्रवण करने से वो नहीं होगा, श्रवण करना पहला कदम है उसके ओर, लेकिन श्रवण करने के बाद जो हमने सुना है उसके ऊपर चिंतन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो जाके उसका अनुभूति हम कर पाएंगे। Srila Prabhupada was teaching the message of the Bhagavad Gita to people, and he wanted them not only just to read the Bhagavad Gita, but he wanted them to live the Bhagavad Gita. तो श्रील प्रभुपाद जी जब गीता का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे थे तो प्रभुपाद की इच्छा ये नहीं थी कि लोग केवल गीता को बुद्धि से पढ़े और समझे, लेकिन गीता को अपने जीवन में जिए, ये प्रभुपाद का प्रचार था। Srila Prabhupada himself lived the Bhagavad Gita, and he expected his students also to live the Bhagavad Gita. श्रील प्रभुपाद खुद अपने जीवन में गीता को उतारे और वो यही चाहते हैं कि जो भी मुझे अपना गुरु मानते हैं या मुझे अपना प्रेरणा मानते हैं तो वो भी इस गीता को अपने जीवन में उतारे। Lord Krishna mentions one of the things required to conquer over lust is that we have to be regulated in our activities. एक श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अगर हमें काम को जीतना है, काम को पार करना है, तो हमारे जीवन में नियमितता होना या मर्यादा का होना बहुत आवश्यक होता है। This is one of the problems which devotees often have. They find difficulty to be regular, to be steady in the practice of तो हम देखते हैं हमारे इस्कॉन में भक्तों का ये बहुत बड़ा संघर्ष होता है कि नियमितता या मर्यादा का वो पालन नहीं करते हैं और वो अपने भक्ति में स्थिर नहीं रह पाते और इसके लिए काम वासना जो है बार बार उभर आती रहती है। Just like tonight, some of you may come here, you may be coming for the first time, or you may come very irregularly. You don't even come once a week,
Maybe you come once in the blue moon. हम देखते आज यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, तो इनमें नियमितता कहाँ पे है? कभी कभी कोई महीने में एक बार आए, कभी साल में उत्सव मूर्ति बन के आ जाते हैं, तो नियमितता हम में नहीं है. So, being steady, regulated in spiritual practice is very important for us to make advancement. इसलिए भक्ति में स्थिर होना, नियमित होना और मर्यादा का पालन करना, ये भक्ति में प्रगति करने के लिए अत्यावश्यक है. So we try to encourage people to be regular. और इसलिए हम प्रयास करते हैं, लोगों को उत्साह देते हैं कि वो नियमितता से भक्ति का पालन करें. Just like we're worshipping here, Lord Sri Sri Radha Madan Gopal along with Lalita and Vishaka. And one of the very important principles in the worship is that everything is regulated. जैसे हम देखते हैं हमारे मंदिर में श्री श्री राधा मदन गोपाल, ललिता विशाखा का आराधना होता है, उनकी पूजा होती है. तो कोई भी पूजा पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो होता है नियमितता उनकी सेवा में. We wake the Lord at the same time every day. We offered foodstuffs to Him at the same time every day. And we offer artis also at the same time. हमारे मंदिर में हम देखते हैं कि हम भगवान को जो उठाते हैं उसका समय पक्का होता है, रोज उसी समय पे भगवान उठते हैं. जो भोग दिखाना है उसका समय भी पक्का होता है, और कब आरती होनी है उसका समय भी तय होता है, और उसी टाइम पे ये सब होता रहता है, चेंज नहीं होता. All of our activities here in this center are on a regulated scale. There's a timetable when everything happens. तो हम जो इस मंदिर में निवास करते हैं, साधना के लिए आते हैं, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही है कि यहाँ पे सब कुछ नियमित होता है और एक टाइम टेबल के हिसाब से, जो समय सारणी के हिसाब से ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता. Some people may say, "Oh, I don't like these places where everything is like that. It's all the same every day, the same time, the same things." तो कोई लोगों के मन में विचार आएगा कि अरे क्या है, रोज रोज वही उसी समय पे वही आरती होती है, वही भोग लगता है, वही प्रवचन होता रहता है, मुझे पसंद नहीं आता ये. Every day sing the same songs. और रोज सुबह 5 बजे वही गीत गाया जाता है. Then you're coming to the wrong place. You're not ready for Krishna consciousness. तो आप गलत जगह पे आए हैं, तो आप कृष्ण भावना के लिए तैयार नहीं है. उससे अच्छा होटल जा सकते. You have to realize. You have to realize that Krishna consciousness is something different from the modes of passion and ignorance. हमें यह समझना आवश्यक, कृष्ण भावना जो है रजो और तमोगुण से पूर्णतया मुक्त है. You want to be irregular and unsteady. That's the mode of passion and ignorance. तो हमें नियमित होना आवश्यक है. अगर हम नियमित नहीं, स्थिर नहीं है, तो वो रजो और तमोगुण की प्रवृत्ति है. Of course, sometimes people think, "Oh, the mode of passion, that's really nice. I will enjoy that." कभी कभी लोगों को लगता है कि रजोगुण जो है, पैशन जो है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत आनंद भी लेता हूं मैं. But Lord Krishna warns you that the nature of the mode of passion is it results in distress. लेकिन श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो रजोगुण होता है, जो पैशन होता है, पैशनेट व्यक्ति होता है, उसका अंतिम फल जो होता है वो बेचारा उदास हो जाता है. So you like passion, be ready for the distress. When it comes, don't complain. तो अगर आप पैशनेट बहुत ज्यादा है तो तैयार रहिए, उसका अंतिम फल जो होगा वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन होगा, उसके लिए तैयार रहिए. You have to learn that was your mistake. और फिर गलती से सीखने वाला बन जाइए आप. So we try to cultivate more the lifestyle of the mode of goodness, where we are regulated and very clean also in the different activities. इसीलिए हम हमारे मंदिर में सत्व गुण को या सात्विकता को प्रधानता देते हैं, जिसमें नियमितता हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो. Cleaning everything, the temple is cleaned every day, the altar is cleaned every day, the deities are dressed and bathed every day. तो देखते हैं हम हमारे मंदिर में रोज झाड़ू पोछा लगता है, भगवान का जो गर्भगृह है उसमें साफ सफाई होती है, भगवान जो है उनको रोज नहलाया जाता है, उनके रोज वस्त्र बदले जाते हैं. So these two principles, cleanliness and punctuality, they're the basic elements, these essential elements in the worship of the deity. तो भगवान के शिव विग्रहों के सेवा में
पंक्चुअलिटी और क्लीनलीनेस, शुद्धता और समय निश्चितता, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। And these two principles keep us in the mode of goodness. They keep us away from passion and ignorance. और यही दो जो तत्व या गुण होते हैं वही हमें सत्वगुण में रखेंगे और रजोतमो गुण से हम दूर रहेंगे। The nature of the mode of goodness, we will enjoy knowledge and we will also enjoy pleasure, happiness. तो अगर हम सत्वगुण में रहेंगे तो ज्ञान में हमें संतुष्टि और आनंद मिलेगा और सात्विक आनंद की अनुभूति हम करेंगे। Of course, we don't want to just simply be in the mode of goodness. Ultimately, we want to transcend even goodness. केवल हमें सत्वगुण में नहीं रहना है, लेकिन सत्वगुण को भी पार करके हमें जाना है। And to come to the transcendental platform, we have to engage in devotional service. और उस शुद्ध सत्व जो तत्व है उसमें अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें भक्ति सेवा का नियमितता से पालन करना आवश्यक है। It's devotional service which will give us spiritual strength. तो जो भक्ति सेवा है वही हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा। People may say, well, can't I get spiritual strength without doing devotional service? क्या हम भक्ति सेवा के बिना आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? Well, do you think you can build your muscles if you don't lift the weights? तो क्या आप समझ सकते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छे मसल्स बिल्ड करने हैं लेकिन मैं जिम में जाके डंबल नहीं उठाऊंगा, ऐसा हो सकता है? You just go to the gym and watch. You develop big muscles just watching. तो अगर कोई जिम में जाके खड़ा रहेगा और बड़े बड़े पहलवानों को देखेगा तो क्या देख के उसकी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, उसको भी करना होगा। The same way you should have to come to the temple. You have to take part in the activities here. तो इसीलिए हमें मंदिर में आके केवल बैठना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी गतिविधियां होती है भक्ति की उसमें उत्साह पूर्णता भाग लेना है। And it's not just physical presence only which will get you the merits of spiritual strength. तो केवल शरीर यहाँ पे रख के हमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलेगी। You have to be hearing carefully and you have to take this knowledge very seriously and apply it. तो हमें सचेत होकर श्रवण करना चाहिए और जो हम श्रवण करें गीता का उसका पालन करने का भी अनुसंधान हमें करना चाहिए। Just like we're telling people, you have to chant Hare Krishna, chant the Mahamantra. जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि हमें नाम जप करना ही है, हरे कृष्ण का जप करना ही है हमें। And so we give everyone beads and we encourage everyone, chant. We come and chant with us. We are chanting every morning. If you find difficulty, come and be with us and chant. But you have to chant. This is the process. तो लोगों को हम बुलाते हैं जप करने के लिए, उनको माला देते हैं, जप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ये भी कहते हैं कि आप घर में कर रहे ठीक है लेकिन आप मंदिर में आइए, सुबह हम सब मिलके जप करेंगे। तो हम सबको कहते हैं कि मंदिर में आके नाम जप सुबह सुबह करें। And it's not just sitting and holding the beads and looking at other people. तो ये ऐसा नहीं कि हम आ गए जपा में इधर बैठे और सबका मुंह देख रहे, ताक रहे सबको कौन कैसा जप कर रहा है। Of course, some people do that. तो कुछ लोग ऐसे आके हाथ में माला रखते लेकिन आंखों सब जगह पे देखते रहते। But if you want to get the real benefit, you have to use the tongue to chant and the ear to hear. तो लेकिन अगर हमें नाम जप का पूरा अनुभूति को प्राप्त करना है तो हमें आंखें बंद करके बिना सोते हुए हमें उच्चारण करते हुए श्रवण पूर्वक नाम जप करना चाहिए। This is how we develop spiritual strength. और इससे आध्यात्मिक शक्ति हम प्राप्त करते हैं। You develop the strength to say no to Maya. तो हमें माया को ना बोलने की शक्ति इससे प्राप्त होती है। When the mind starts to complain and say, "Oh no, I don't want to go to temple again," then you have to tell the mind, "No, we have to go." लेकिन कभी कभी मन बोलेगा मंदिर में बहुत ज्यादा ही सत्संग होते हैं, कौन जाएगा, जब कौन करेगा। लेकिन नहीं, हमें मन को ना बोलना चाहिए और शरीर को यहाँ पे लेके आके उत्साह पूर्वक भाग लेना चाहिए। The mind will say, "Oh, we went last week. Why I have to go again this week? Oh no." अरे पिछले हफ्ते में आया था और पिछले हफ्ते मैंने सत्संग सुन लिया, अभी बहुत ज्यादा हो गया, अभी ये हफ्ते छुट्टी मार देंगे हम। And the mind will say, "Oh, we chanted Hare Krishna before. Oh, we chanted enough. We don't need to do any more." अरे बहुत जप कर लिया, अभी माला भी बहुत घिस गई, अभी जप करने का क्या लाभ अभी। We have to conquer the mind when it starts to resist the process of devotion. We have to reject the mind. We have to beat the mind. तो जब भी मन धिंगाणा करता है तो उसको पीटना चाहिए हमें, उसको ठोकना चाहिए उसको, और मन को सीधा करना चाहिए हमें। We have to beat. The mind needs a good beating from time to time. And this is how you beat the mind. You come to the morning program. तो मन को पीटना है तो हमें मंगल आरती में आना आवश्यक है।
Wake up early, come to temple, chant. सुबह जल्दी उठो, मंदिर में आओ, नाम जप करो. You can still go to work. We don't mind. Prabhupada said, keep working. Don't encourage you to give up your job immediately. प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आपको घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. आप जप करने के बाद जॉब पे जाइए, घर पे जाइए, सब काम कीजिए. I was coming to the temple for a few weeks before they told me to give up my job. महाराज बता रहे कि वो मंदिर में जब नियमित आने लगे, कुछ हफ्ते हुए थे, तब भक्तों ने कहा कि तुम बहुत सिंसियर हो, अभी काम धंधे छोड़ के आ जाओ मंदिर में. Anyway, the idea is, we shouldn't be premature about these things. We have to prepare ourselves to detach ourselves from the material life. तो वैराग्य को स्वीकार करना हमें इमेच्योरली नहीं करना है, हमें बहुत परिपक्वता के साथ करना चाहिए. इसलिए हमारे सारे जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें भक्ति का पालन करना चाहिए. But we should be convinced actually there's no real happiness in this material world. लेकिन हमें ये विश्वास होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी सच्चा वास्तविक आनंद नहीं है. This material world is simply a place of misery, ये from बहुत- the highest place down to the lowest. ये भौतिक जगत ब्रह्मा जी के लोक से लेके पाताल लोक तक केवल दुख और निराशा ही है इस दुनिया में. Everywhere there is birth and death. सब जगह पे जन्म मृत्यु का चक्र है. But we want to enjoy, we want happiness. Our nature is to enjoy. लेकिन हमें आनंद की अनुभूति चाहिए, हमें आनंद चाहिए इस जीवन में, क्योंकि हमारा वो स्वरूप है. We have to know where to find that happiness. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे खोजना है उस आनंद की अनुभूति को. You won't find that happiness in the uncontrolled mind. लेकिन उस आनंद को कभी भी अनियंत्रित मन में प्राप्त नहीं किया जा सकता. We don't find that happiness in just gratifying senses. केवल इंद्रियों का भोग करने से ही उस आनंद की अनुभूति कदापि नहीं हो सकती. But we can experience spiritual bliss when we start to take up the process of bhakti yoga. लेकिन जब हम भक्ति योग का शुरुआत करते हैं प्रामाणिकता से, तब उस आनंद की अनुभूति को हम आस्वादन करने को शुरुआत करते हैं. Because the process of bhakti yoga awakens our spiritual nature, and the nature of the soul, Satchit Anand. क्योंकि भक्ति योग जो है वो आत्मा का जो गुण धर्म है, सच्चिद आनंद, उसको उजागर करना शुरू कर देता है. So we want some spiritual bliss, it's there, but we have to awaken our spiritual nature. लेकिन हमें अगर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति चाहिए तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए. भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो अपने आप वो जागृत हो जाएगा. We're trying everywhere, so many new things. We're looking, maybe a new drink comes out, a new cigarette comes out, a new car comes out. We're looking, is this the thing going to make me happy? हम उस खुशियों को इस दुनिया में ढूंढे कि नया कार आ जाएगा तो वो ले लेंगे तो खुश हो जाएंगे, नया सिगरेट आ जाएगा वो लेके खुश होंगे, नया सोडा पी लेंगे तो खुश हो जाएंगे. लेकिन कभी भी इस दुनिया में हम इस वस्तुओं को बदलने से सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते. Where is the software which will give us eternal happiness? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमें शाश्वत आनंद दे सकता है? We have the Bhagavad Gita. और वो है श्रीमद् भगवद गीता. That will give you real happiness. वही वास्तविक आनंद की अनुभूति दे सकता है. Prabhupada was asked what is the most important verse in the Bhagavad Gita. प्रभुपाद जी ने पूछा गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? He referred the devotee, the 9th verse of the 4th chapter. Janma karma chame divyam evam yo veti takvada takvadeham punarjanma neti mamiti so Arjuna. That if we understand the divine nature of Lord Krishna's birth and activities, then when we give up this body, we will never take birth again. तो प्रभुपाद जी बताते हैं गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक को जन्म कर्म चमे दिव्यम. तो उसमें कृष्ण बता रहे अर्जुन को कि जो भी व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को जान लेता है, मृत्यु के बाद कभी भी इस भौतिक दुखालय में नहीं आएगा, वो मुझे प्राप्त करेगा. So this is the important point in coming to Krishna consciousness and reading Bhagavad Gita and looking for spiritual life. We have to be conscious that we're in the material body and we are spiritual beings. तो यही मूल मुद्दा है हमारे भक्ति योग का कि हम इस भौतिक दुनिया के नहीं है, ये शरीर के भी हम नहीं है, हम आत्मा है, सच्चिदानंद भगवान के अंश है. We want to free ourselves from this material body. हमें इस भौतिक बंधन से मुक्त होना है.
And that's what we want. When we give up this body, we don't want to come back in this world. और एक बार इस शरीर को त्याग करने के बाद फिर से हमें शरीर ग्रहण करके इस भौतिक दुनिया में नहीं आना है. If you come back, means you failed. अगर हम फिर से शरीर धारण करके यहाँ पे आएंगे मतलब हम नापास हो गए. Just like if you go to college and you're studying and you do that and you have an exam and you fail, oh no, you have to go through the course again and then again pay the fees, again the exam. तो हम देखते कॉलेज में बहुत होशियार विद्यार्थी होते हैं, ठीक से पढ़ाई करते नहीं, जाके परीक्षा में बैठते हैं और जब रिजल्ट आता है तो वाहिड़ी लग जाती है और फिर नशा पानी करके रोते बैठते हैं. लेकिन समस्या ये है कि उनको फिर से पूरे साल का अभ्यास करना पड़ेगा, फिर से परीक्षा देनी होगी. So we've been in this condition many times. We've been repeating, resitting. You fail the exam, resit. We've reset many times the exam and we're still here in the material world. हम उसी विद्यार्थी के समान है, हमने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, इतनी बार परीक्षा दी लेकिन हर बार फेल हो रहे हैं कि उसकी कोई गणना ही नहीं है. And Lord Krishna is coming and He's telling us, just surrender to me, understand my janma and karma, how they're all divyam. And when you give up this body, you'll never come back. तो श्री कृष्ण आते तरस खाके इस बच्चे को अभी पास कराना ही पड़ेगा और वो हमें गीता बताते, उसका ज्ञान देते हैं ताकि कृष्ण के कर्म और जन्म जान के हम इस दुनिया को पार कर दे. So Lord Krishna is giving His promise there in Bhagavad Gita. We should take advantage. कृष्ण हमें वचन दे रहे भगवद गीता में, उसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए. But we're thinking, well, give me time, don't push me, give me time, be patient. लेकिन हम बहुत मंद विद्यार्थी है, हम बोलते हैं अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम करने दो, आराम से करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो धीरे धीरे करेंगे. Oh yeah, we've been patient many lifetimes. That's the problem. और प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि ये धीरे धीरे करते करते हजारों लाखों करोड़ों जन्म बिता चुके अलग अलग योनियों में हम. We have to understand the urgency of the situation. We're in this material world. It's not a very pleasant place. तो हमें इस आपातकाल को समझना चाहिए कि बहुत डेंजर इमरजेंसी है, बहुत समय तक गुजार चुके हैं, अभी हमें ये गलती नहीं करनी है, अभी तुरंत हमें अपने काम पे लग जाना है. And if you're thinking it's not so bad, then just wait. The troubles are coming. और अगर किसी को लग रहा है क्या महाराज जी क्या बता रहे हैं, हमारा जीवन बहुत प्रेम से सुकून से चल रहा है, ठहरो, कभी भी कुछ भी हो सकता है. The troubles are coming to everyone. Old age, disease, death, war, famine, destruction, everything. There's so many problems. कब कहाँ से क्या आ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है और सिलेंडर भी नहीं मिलेगा बाद में. तो इसीलिए हमें अपने जीवन को गंभीरता से लेना चाहिए. We don't know when the drones are going to come in and blow us up. हमें पता नहीं युद्ध होगा और ड्रोन्स कब आएंगे और किसको उड़ाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. But we're thinking, oh, I'm happy. लेकिन कोई बोलेगा अरे हमारे घर में चूल्हा है, हम बहुत खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसा हो नहीं सकता. I have my tea and coffee. I have my cigarettes. तो मेरे पास मेरी सब सुख सुविधा है, मैं चाय कॉफी ले रहा हूँ, मेरा सिगरेट भी मेरे पास, कोई चिंता नहीं है. We have to understand what is our situation, what is the reality. लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारी स्थिति बहुत विकट है और वास्तविकता क्या है ये हमें पता होना चाहिए. So, spiritual teacher's job is to open the eyes. We're like blind people. And the gurus have to come, they have to open our eyes and say, look, look. तो गुरु का कर्तव्य, शिक्षक जो होता है उसका कर्तव्य होता है कि लोगों की आंखें खोल देना और वास्तविकता उनको दिखाना और दिखाना कि देखो ये कितना भयानक सत्य है. Sometimes we're very stubborn. We don't want to look. We don't want to see the truth. कभी कभी हम बहुत मतिमंद होते हैं कि हम आंखें नहीं खोलते हैं और खोलने के बाद देखते नहीं है ताकि फिर अपना जीवन प्रेम से चलता रहे. And we say, why are you disturbing me? I'm trying to enjoy my life. आप क्यों हमारे जीवन में बाधा बन रहे हो, क्यों हमारे जीवन के भोग को आप लेके जाना चाहते हैं, हमें अपना जीवन का भोग लेने दो. They don't see the situation, how precarious this life is, that at any moment we can leave the body. मंद लोगों को समझ में नहीं आता है कब मृत्यु आ जाएगी, कब काल आ जाएगा और कब सब कुछ छीन लिया जाएगा, उसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता. We have the example in Srimad Bhagavatam, the great demon Hiranyakashipu, father of Prahlad. He was ruling the heavenly planets and everyone was serving him.
हम देखते हैं भागवत के सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर था, उसने स्वर्ग से लेके पाताल लोक सब कुछ जीत लिया था और सब जगह का भोग उसके उंगलियों पे नाचता था। But Lord Nrsingadev came, and in a few seconds he was finished. और अचानक भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए और कुछ ही समय में उसका सर्वनाश कर दिया उन्होंने। So any moment you can be the biggest man, next life you can be the dog in the street. ऐसा ये दुनिया में होता है कि जीवन में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत अचीवमेंट कर लेता है, अगले जन्म में कुत्ता बन के रास्ते पे घूमता है। We should be very careful, very cautious, and take advantage to make sure that does not happen to us. और हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, हमें बहुत गंभीर होना चाहिए कि ये स्थिति हमारे जीवन में कभी ना आए, हम हमेशा कृष्ण मार्ग पे चले। So we can do that. We can protect ourselves. The insurance, the protection comes when you start to pick up your bead bag and start to chant the Maha Mantra. तो हमें संरक्षण मिलता है, हमें मदद मिलती है, हमारी सुरक्षा होती है जिस समय हम हरि नाम लेना शुरू करते हैं, अपनी माला झोली गले में लेके चलते हैं, नाम जप करते हुए शुरू हो जाता है प्रोटेक्शन। We have to conquer the mind, and the way to conquer the mind is in the arena of japa. और हमें हमारे मन का नियंत्रण करना है तो उसका सबसे बड़ा अखाड़ा जो है जब हम जपा सर्कल में बैठ के नाम जप करते हैं। And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he stressed that in this Kali Yuga there is no other way but the holy name. महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इस कलयुग में नाम जप के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं जिससे मन नियंत्रण में लाया जाए। And when Prakashananda Saraswati asked him why he didn't study Vedanta, Mahaprabhu said, no, my guru said I'm a stupid person, I cannot understand. जब प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा चैतन्य महाप्रभु कि आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, आप ये क्या नाम जप करते हैं, तब महाप्रभु बताते कि मैं बहुत मूर्ख हूं और मुझे बुद्धि ने, ये गुरु ने देखा और कहा कि तुम केवल नाम जप करो। My guru told me just to chant Hare Krishna. और गुरु जी ने मुझे हरे कृष्ण मंत्र दे दिया। So just chanting Hare Krishna, you get all the knowledge of the Vedas. Everything is there in the Maha Mantra. अगर हम महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का सारे वेदों का सार, वेदों का ज्ञान उस नाम जप में है। Everything is revealed through the holy name. अगर हम नाम जप को प्रामाणिकता से करेंगे तो सारा ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है। We say Nam Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. The holy name is Chintamani. You want to buy some gold, Akshaya Tritiya is coming, people go and buy gold. Well, we're giving Chintamani in the form of the holy name. हम देखते हैं अक्षय तृतीया के दिन लोगों को सोना खरीदना होता है ताकि उनकी धन संपत्ति अक्षय हो जाए, लेकिन यहाँ पे नाम चिंतामणि है। अगर नाम चिंतामणि मतलब जो भी मांगेंगे वो मिल जाता है चिंतामणि से, वो नाम के रूप में वो हमें मिला हुआ है। Chanting the holy name will fulfill all of our material and spiritual desires. ये नाम जप जो है वो हमारी सारी भौतिक कामनाओं को और आध्यात्मिक कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। And if you don't believe me, try it for yourself and see. अगर आप मुझ में विश्वास नहीं करते, कोई चिंता नहीं, आप प्रयास कीजिए, आप ट्राई मारिए और जरूर मिलेगा आपको फल उसका। I have been chanting more than 50 years. मुझे हाफ सेंचुरी हो गई तब से मैं जप कर रहा हूँ। And I'm still chanting more and more. और अभी पे और ज्यादा जप कर रहा हूँ मैं। And I don't feel like I've lost anything. Rather, I think it's the greatest treasure. और मुझे ऐसा कभी नहीं लगता जीवन में कुछ खोया है मैंने, उल्टा मुझे लगता है कि मैंने सबसे बड़ा धन पाया है और बहुत संतुष्टि की अनुभूति मैं आज करता हूँ। So I think all of you are much more better situated than me. I'm coming from the Western world. I'm born in a non-Hindu family. I don't have any Vedic culture. But still, I chanted the holy name and I can feel the change in my life. मैं बताता हूँ कि आपकी दशा मेरे से बहुत अच्छी है क्योंकि मेरा जन्म पाश्चात्य देश में हुआ, गोरे परिवार में हुआ, जो कोई हिंदू संस्कार नहीं वहां पे, लेकिन फिर भी मैं जब 50 से ज्यादा वर्षों से नाम जप कर रहा हूं तो मुझे अनुभूति हो रही है परिवर्तन की। आप तो बहुत पवित्र पुण्यात्मा है, भारत भूमि के है, वैदिक संस्कृति के हैं, आपको तो कितना बड़ा लाभ हो सकता है। So if the holy name can work for me, it can work much more for you. अगर नाम प्रभु मेरे ऊपर इतना कृपा कर सकते हैं तो आप भारत में है, आपके ऊपर कितनी कृपा हो सकती है। So I've come here this evening to fall at your feet and to beg you and tell you you're all great souls. I very much appreciate you. You're so wonderful, so intelligent, so kind. Please take to this chanting of the holy name. आज मैं यहाँ पे आया हूँ, आप सबके सामने हाथ जोड़ते हुए आपको प्रणाम करते हुए बोल रहा हूँ
कि आप सब लोग नाम जप की विधि को गंभीरता से लीजिए, उसको अपने जीवन का प्रमाण मानते हुए उस नाम जप को कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन की अनुभूति देखिए। You won't waste your time. You'll get the greatest benefit. आप कभी भी विफल नहीं होंगे, कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, आपको सबसे बड़ा धन प्राप्त होगा इससे। Okay. Any question? Any argument? Any doubt? किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कोई आर्गुमेंट? Hare Krishna Maharaj, thank you for the lecture. I face this problem whenever we go for travel, especially in train. So the atmosphere is completely surcharged with mode of ignorance and passion. Some smoke cigarettes, alcohol, and people dress in different ways, and completely lot of crowded and lot of sound. So even when we chant the holy names also, we cannot hear the holy name. And even when I read books also, the atmosphere is completely filled up with that kind of people. And in temple, if you are there, we can clean and then we can be in mode of goodness and we can read and we can do our sadhana. But when we go in train travel, especially, we go for long distance, 36 hours, 35 hours, we cannot do anything at that situation where we have to sit in the place where we are and all people are sleeping and do some other things. So that time, how to do the sadhana, how to maintain the mode of goodness and the time. तो प्रभु जी का प्रश्न बहुत प्रामाणिक है। प्रभु जी बोल रहे हैं कि मंदिर में बैठते तो वो सात्विक साधना कर लेते हैं हम, लेकिन जब मैं घर पे जाता हूँ तो 30 घंटा 40 घंटा यात्रा में जाते हैं तो बहुत लंबे सफ़र करने पड़ते हैं, और ट्रेन में कुछ लोग क्या क्या अतरंगी काम करते रहते हैं, उसमें बैठ के हमें नाम जप करना पड़ता है, तो उससे बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? Well, there are no hard and fast rules about chanting the holy name. You can chant anywhere. तो नाम जप के लिए कोई बहुत ही कड़क नियम नहीं है, कहीं पे भी हम नाम जप कर सकते हैं। And Srila Prabhupada was traveling all the time. He was in the airplanes and in the trains, but he was always chanting. तो श्रील प्रभुपाद जी जो है उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, प्लेन में किया, ट्रेन में किया, और जब भी कहीं पे भी प्रभुपाद होते थे ट्रैवल में भी हमेशा नाम जप करते रहते थे। And he was always able to talk about Krishna and give Krishna consciousness to people. और फिर कहीं पे भी जाते थे तो कृष्ण कथा कर देते थे, हरि नाम का जप करते थे और सबको कृष्ण कथा हरि नाम देते रहते थे। So, yeah, we have to travel, go different places, and there's a lot of noise everywhere. But you can, if you get some headset, you put and you can be hearing. हाँ, तो हमें बहुत प्रवास करना पड़ेगा ट्रेन में, यहाँ वहाँ पे जहाँ पे शोरगुल बहुत होता है, नाम जप नहीं कर पाते, कोई चिंता नहीं, कान में बोले डालो, कान बंद कर दो, हम नाम जप की अनुभूति कर पाएंगे। And even if you don't use the headset, within your mind you can be hearing and chanting. अगर हम कान को भी न बंद करें तो भी अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो हमारे मन में हरिनाम की गूंज उठ पाएगी और हरिनाम को सुन भी पाएंगे और हरिनाम को बोल भी पाएंगे मन के अंदर। Within your mind you can be singing the different songs which we sing every day and the different bhajans and remembering the different slokas. और फिर मन में भी हम कई सारे भजन या हमारे वैष्णव गीत गा पाएंगे, श्लोकों को गुनगुना पाएंगे, मन के अंदर ही उसका स्मरण कर पाएंगे। You have to train the mind, make use of the mind for the service of Krishna. तो हमें कृष्ण सेवा के लिए मन को नियमित करना आवश्यक है और मन को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। Right, on Maharaj Ambarish's example, Savaimana Krishna Padara Vindayot. The very first thing in devotional service is to fix the mind on the lotus feet of Lord Krishna. अमरीश महाराज का पहला उदाहरण है कि सबसे भक्ति का पहला कदम जो है अपने मन को कृष्ण के ऊपर केंद्रित करना। So you do that by singing songs and by reciting slokas and chanting the holy name. और फिर नाम जप के द्वारा, वैष्णव गीत के द्वारा, श्लोकों के पठन के द्वारा ये आसानी से हो जाता है। Yeah, everywhere there's a lot of noise, there's a lot of people around, but if you're controlling the mind, you can use it to think of Krishna in every situation. तो बहुत सारी शोरगुल भीड़ भाड़ होगा लोगों का, फिर भी अगर मन को प्रशिक्षित कर दिया हमने तो ऐसे स्थिति में भी हम कृष्ण स्मरण कर पाएंगे और भक्ति कर पाएंगे। We have to practice this Krishna consciousness, sadhana bhakti. We're practicing. तो हमें इस साधना भक्ति का अभ्यास बहुत नियमित रूप से और प्रामाणिक रूप से करना चाहिए। And wherever the mind wanders due to its restless and unsteady nature, bring it back.
तो कभी भी चंचल मन भागता यहाँ वहाँ तो उसको तुरंत पकड़ के खींच के लेके आना चाहिए. So it's not a problem, just the fact that you're traveling around, it's up to us how determined we are to remember Krishna. तो ट्रैवलिंग की समस्या नहीं है, हम अपने आप को कैसे प्रशिक्षित किए कृष्ण का स्मरण के लिए, ये महत्वपूर्ण है. How much do you want to be Krishna conscious? हमें कितना कृष्ण भावनामृत में आना है. Then we'll bring the mind to Krishna. और फिर हम मन को खींच के लेके आएंगे कृष्ण की ओर. We will chant, we will remember, we will find some way to think of Krishna. तो हम जब भी करेंगे, हम स्मरण भी कर पाएंगे और कथा भी सुन पाएंगे. One devotee had on his watch, he had an alarm which went off every half an hour. And every half hour the alarm would go and he would start chanting every half hour. तो हमारे एक भक्त है, उनके पास जो घड़ी है उसमें उन्होंने हर आधा घंटे का अलार्म लगाया है और वो अलार्म बोलता है नाम जप करो, नाम जप करो. तो भक्त हर आधा घंटे के बाद नाम जप की याद आती है, वो करते रहते. So people have many things, many novel ways to help them to remember Krishna. तो आधुनिक युग में बहुत सारे नए नए गैजेट्स उपकरण निकले जो हमें याद दिलाते रहते हैं कि कृष्ण के करीब जाना है हमें. So it's up to you how much you want to remember Krishna, and Krishna will guide you. Krishna will direct you. He will show you ways to remember him. हमारी जितनी तीव्र इच्छा हुई कृष्ण के लिए, उतना श्री कृष्ण में मदद करेंगे उनके स्मरण में, साधना में. So Prabhupada gave us different verses to chant, like when we wake up in the morning, chant a verse from Srimad Bhagavatam. तो अलग अलग श्लोका है, सुबह उठने के बाद हम कौन से श्लोकों का पठन करें श्रीमद् भागवत के. Before taking rest at night, we want to hear Krishna book. तो सोने से, रात को सोने से पहले हम कृष्णा बुक जो है उसको श्रवण करके सोए. And actually, if you come to the morning program, you go through the morning program, that will give you a lot of spiritual strength to go through the day. तो अगर हम सुबह मंगल आरती में आएंगे और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, तो पूरे दिन भर के लिए जो आध्यात्मिक शक्ति आवश्यक है वो उससे हमें प्राप्त हो जाती है. You come to temple, you spend time in the temple chanting every morning, where during the daytime you can go out and you won't be affected by Maya. अगर हम सुबह यहाँ पे आके नाम जप करते हैं, मंदिर में बैठ के भगवान के दर्शन लेते हैं, तो बाहर जाके हम काम भी करेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे, हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो भी माया का स्पर्श नहीं होगा. Because you've got that spiritual strength, that bonus is there, that you were there in the temple all morning, you were chanting, you developed that spiritual shakti which will protect you from Maya. तो क्योंकि इस मंदिर में वो शक्ति प्राप्त होती है आध्यात्मिक, जिससे हम माया को ना बोल सकते हैं और प्रभावित हो सकते हैं. Just like if there's an epidemic, the doctors have to take care they don't get infected. तो हम देखते हैं जब कभी संसर्गजन्य रोग आता है तो डॉक्टर्स बताते हैं क्या करने से वो संसर्ग हमें नहीं होगा. And so the same way, devotees, we have to protect ourselves from Maya. और इसके लिए भक्तों को ये जानना चाहिए किस प्रकार से हमें अपने आप को माया से प्रभावित नहीं होने देना है. And you get that protection by coming to morning program, by hearing and chanting for 4-5 hours every morning. तो वो हमें मिलेगा अगर हम मंदिर में सुबह आएंगे, 4-5 घंटे हमारी साधना करेंगे, तो हम माया से प्रभावित कभी नहीं होंगे. If you start the day like that with the sadhana bhakti, then throughout the day it'll be easier to remember Krishna. तो दिन की शुरुआत अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो पूरे दिन भर में हमें श्री कृष्ण का संरक्षण और कृपा प्राप्त होगी. Okay. Any other question? Yes, you have a question? Yes. Hare Krishna Prabhuji. Actually, I do not have a question, specific question, but I would like to be thankful because I really liked your motivational lecture. And on the other side, here I'd like to say one thing about we all Indians. I believe that we all are extremists, and when we pray to God, either we are too happy or we are too sad. We never practice it on a regular basis. The way you said, like I myself will apply this from today itself. Okay, so that is very important to apply it on a regular basis. Okay, because God will never see to us like whether you are either happy or you are in trouble. Or here in India, we all have one thing in our mind that if you want something from the God, then only we go to the God.
So that is the main issue. But yes, from today, I promise that we'll follow the regular practice of this. Oh, Thank very you good. so much. Thank you very much. Very nice. Yes, you've described very nicely the nature of materialistic life, that we pray to God when we need something. And generally we don't think much about God, but we, unless we get something which is very nice, then we may thank God. If we're very pious, we thank God. But in the normal course of life, people are not very God conscious. But if we can make it a regular program, it will be very good. Thank you. Yes? Hare Krishna Maharaj. So I have one question about for the morning program. We're finished here, but most time we're at home. How we do the practicing the Bhakti Yoga at home? If our home member have non-veg eating, dalu drinking, or some bear lesson eating, how we deal with them? Or they're just they just don't like Krishna, or they have another religions. So how we deal with our family members? तो माता जी का प्रश्न है, माता जी बोल रहे कि आप बोल रहे घर पे रह पे भक्ति योग का अभ्यास करें, लेकिन हमारे घर में अगर कोई मांसाहार करता है, नशा करता है और कोई कृष्ण को पसंद नहीं करता है, तो ऐसे परिवार में रहते हुए हम कैसे भक्ति योग का अभ्यास करें? Yeah, maybe you need to move. Get another house. इसका अनुवाद मैं नहीं कर सकता. इसका अनुवाद मैं कर सकता हूँ, आपको मीराबाई बनना होगा. Or at least to make a separate room in the house, which is your temple. तो हमें घर में एक ऐसे रूम को बनाना चाहिए जहाँ पे कृष्ण का मंदिर हो, और उस रूम पे हमें अपना समय साधना में बिताना चाहिए. When you tell them this is a temple room, you can't come in. हाँ, और उस मंदिर में हमें ये बोलना चाहिए कि जो भी नॉनवेज खाता है या कोई शराब बिराब पीता है, तो वहाँ पे आके अपवित्र न करे उसको. Yeah, unless you're pure and clean and you haven't been drinking, you haven't been smoking, then like that. Have some rules, standards, like in the temple. तो कुछ नियम बनाना चाहिए कि अगर आप बिना नहाए और खा पी के आए, तो ऐसे अवस्था में मंदिर में ना आए, उस रूम में ना आए. So you can do that in your home. You make one room which is a temple room and have puja there. तो एक घर में एक रूम ऐसे होनी चाहिए कि जो मंदिर बने वहाँ पे, और वहाँ पे नियमों का पालन हो. And do everything there in the temple room. और उस छोटे से रूम में भगवान के सारी साधना कीजिए. Chant the Mahamantra, have kirtan, or play bhajans, and read Srimad Bhagavatam, listen to lectures. तो नाम जप कीजिए वहाँ पे, भजन गाइए वहाँ पे, श्लोक का पठन कीजिए, भागवत सुनिए वहाँ पे. And so make use of technology to make your home just like a temple. तो हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि उस छोटे से रूम को भी हम मंदिर बना सकते हैं. And the family members, they should be trained that, this is a temple room and there are standards and they must observe the standards. और फिर हमें अपने परिवार वालों को भी ये सिखाना चाहिए कि पूरे घर में ये जो रूम है वो भगवान की है, तो उस रूम में हमें कुछ नियमों का पालन करना है. ये प्रशिक्षण धीरे धीरे हमें देना चाहिए उनको. Yes, Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रश्न ऐसा है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा. प्रश्न ऐसा है कि जब हम लोग मंदिर आते हैं या फिर सुबह नाम जप करते हैं या प्रभु की हम लोग पठन करते हैं, उस टाइम ही सिर्फ याद रहता है कि हम भगवान से जुड़ते हैं. पर जैसा दिन चालू हो जाता है, हम लोगों से व्यवहार करते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, तब वो लोग हरे कृष्णा मंत्र जाप नहीं करते. हम लोग फिर उनके तरीके से हम लोग अपना जीवन जीने लगते हैं. तब भूल जाते हैं कि हम लोग को चैंटिंग करना चाहिए या फिर भगवान का नाम करना चाहिए, जप करना चाहिए. हम लोग भूल जाते हैं चीज़, और फिर अपने माया में हम लोग अटक जाते हैं. तो कैसे हम लोग अपने ही आप में जिए कि जैसे भगवान का नाम हर टाइम लेते रहे और हम उसमें ग्रस्त रहे, क्योंकि माया की शक्ति इतनी प्रभावित कर देती है कि हम लोग फिर बाद में भूल जाते हैं दिन भर पे, और मंदिर में के आने के बाद ही पता चलता है अरे अपने को चलो नाम जप करना है या फिर. Maharaj, he is asking that yes, when we come to temple for sadhana or for hearing, we remember that we are connected to Krishna. Krishna is our master.
But when we go out in society for our business or our dealings, that time that energy is so powerful. Those people are so atheistic and unconnected with Krishna that we forget that we are servant of Krishna and our duty is to serve him. So while we are in the temple, we remember these basic things. But when we go out for our work, for our business, that time that energy overpowers our memory and then we forget connection with Krishna. So how to balance and how to keep ourselves remember that reality? Well, you have to do your business, that's important, that you go out and the important thing is that you get that spiritual beginning to the day. The beginning of the day you have to practice hearing and chanting, and that will give you spiritual strength so that when you go out you will not forget Krishna. तो महाराज जी बोल रहे हैं कि यस, अगर हमें हमारा काम धंधा करना है तो करना ही चाहिए, उसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन दिन की शुरुआत हम इतनी मजबूत करें श्रवण और कीर्तन के द्वारा, नाम जप करें और गीता भागवत का श्रवण करें, वो जो सुबह का हमारा साधना का समय है उसको बहुत पक्की तरीके से हम निभाएं. If you're chanting japa every morning, good japa, then it will give you a lot of spiritual strength when you go out. तो अगर हम सुबह नाम जब बहुत प्रामाणिकता से करेंगे मंदिर में आके, तो वो पूरा दिन भर शक्ति हमें प्रदान करेगा. So Prabhupada asks us chant couple of hours, spend a couple of hours, chant 16 rounds, and that can give you a lot of strength. प्रभुपाद ने हमें बताया कि हमें 2 घंटा नाम जप करना चाहिए बहुत प्रामाणिक रूप से, वो है 16 माला. अगर हम वो नियमित रूप से मंदिर में आके करेंगे, एकाग्रता के साथ करेंगे, तो बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है उससे. And if you start to do this, you see when you go out, you will not forget Krishna. और ये आप देखोगे कि ये नियमित रूप से करेंगे और बाहर भी जाएंगे हमारे काम धंधे के लिए, तो भी वो हमें प्रभावित नहीं करेंगे, हम कृष्ण भावना में रख पाएंगे अपने आप को. So you have to do like that. You want to have serious spiritual practice. It's not just I'm remembering God in the morning, I'm at home, I remember God. You bow your head, you light some incense. You have to do serious spiritual practice, and it begins with the chanting of the holy name. तो ये ऐसा नहीं कि सुबह उठे, हमने नहाने के बाद दिया बत्ती जलाई, भगवान के सामने मत्था टेका, राम राम बोला, चलो हो गया आज की साधना. नहीं, अगर हमें मजबूत होना है तो हम 2 घंटा सीरियस गंभीरता से, प्रामाणिकता से नाम जप हमें एकाग्रता के साथ करना आवश्यक है. So you really want to remember the Lord when you're out there in the field, in the business, you start to chant the Maha Mantra. तो अगर हम काम धंधे पे जाने के बाद भी अगर कृष्ण स्मरण करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो सुबह हमें नाम जप गंभीरता से करनी आवश्यक है. And you'll get that Shakti, you'll be empowered. फिर आपको शक्ति मिलेगी और कृष्ण के द्वारा सुरक्षा भी मिलेगी. Krishna will bless you. और कृष्ण के आशीर्वाद प्राप्त होंगे. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Okay. So so we are very grateful to His Holiness Bhakti Vigna Vinashak Narasimha Swami Maharaj that yearly he comes here. Maharaj, please keep that schedule in your days. At least 2-3 days you spend in Nasik and inspire and chart our sadhana, so we can practice our sadhana sincerely in Krishna consciousness and help others to bring to that platform of Krishna consciousness. So हम महाराज जी के बहुत ऋणी है, आभारी है. महाराज गए 50 से भी अधिक वर्षों से बहुत प्रामाणिक रूप से और समर्पित भावना से कृष्ण भावना का, कृष्ण भक्ति का अभ्यास भी कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार भी कर रहे हैं पूरे देश विदेश में. तो महाराज जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज की, Srila Prabhupada ki. तो महाराज जी न केवल अपने प्रवचन के माध्यम से बल्कि अपने स्वयं के उदाहरण के द्वारा हम सभी को प्रेरणा दे रहे थे. महाराज श्री आए हैं तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की कक्षा वो दे रहे थे, साथ में हमें ब्रह्मचारी क्लास दिया, युवा विद्यार्थियों को उन्होंने क्लास दिया और साथ में वे प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे से अपने साधना प्रारंभ करते थे हम सब भक्तों के साथ और 9 बजे तक वो यहाँ पर रहते. तो इस तरह से न केवल वो अपने प्रवचन के माध्यम से बल्कि स्वयं के उदाहरण के द्वारा हम सभी को प्रेरणा दे रहे थे. हम विशेष रूप से आभारी है श्रीमान कृष्ण कीर्तन प्रभु और श्रीमती वृंदा विलासिनी माता जी, जिनके कारण महाराज श्री का यहाँ पर आगमन होता है.
और महाराज श्री जैसे कि कुछ वर्ष पूर्व आए थे तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर ये मंदिर है और इतना बड़ा कम्युनिटी है, तो वो कह रहे थे कि नासिक में बहुत बड़ा मंदिर है। परंतु जब वो इस वर्ष आए तो वो कहने लगे कि यहाँ पर एक और बड़ा मंदिर